ہمارے بیچ میں ایک بڑی ہی اہم شخصیت تشریف فرما ہے، جنہیں ہم دیوبندیت و قاسمیت کے ترجمان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ حضرت مولانا پروفیسر شکیل احمد صاحب قاسمی، اورینٹل پبلک اسکول پٹنہ۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ اور خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جناب پروفیسر شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، دانشور حضرات، طلبہ عزیز، منتظمین جامعہ، حاضرین و ناظرین، ابھی جامعہ میں آپ سے روبرو ہوتے ہوئے جامعہ کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت یاد آ رہے ہیں، اور اس طرح کی مجلس میں، اس طرح کے پروگرام میں وہ بس ان کی رونق ہوا کرتے تھے، ان کی خاکساری، ان کے اندر جو محبت کی صفت تھی اور ان کا جو اپنا خاص انداز تھا، وہ سب کا سب یاد آ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کسی چمن میں جب آدمی آتا ہے تو چمن کو قائم کرنے والا وہ آدمی بھی یاد آتا ہے۔ ہم سب سے پہلے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے اس لگائے ہوئے چمن کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کے پھول میں خوشبو اور خوش رنگی اپنی طرف سے اللہ رب العزت خصوصی نصرت کے ساتھ اس پھول میں مزید خوشبو عطا فرمائے۔ جو منتظمین ہیں انہیں کاموں میں اللہ رب العزت کی نصرت شامل حال ہے۔ اساتذہ، منتظمین، خادمین مدرسہ، طلبہ عزیز، سب کے ساتھ خالق کائنات کی خصوصی مہربانی ہے۔ حضرات، اس موقع پر ہمیں ایک عہد کرنا چاہیے کہ ایک آدمی جنہوں نے رات دن کی کوشش و کاوش سے اتنا بڑا کام کیا اور کام کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب جو لوگ بعد کے ہیں اور ان کے کاموں کو سنبھال رکھا ہے انہوں نے، ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ پہلے کا جو کام ہے اس کو باقی بھی رکھنا ہے اور اسے ترقیوں سے ہمکنار بھی کرنا ہے، آگے بھی بڑھانا ہے۔ جو طلبہ باہر سے آ رہے ہیں، جو طلبہ یہاں رہ رہے ہیں مدرسے میں، ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال ہو اور ان کی ترقی کے سلسلے میں آدمی سوچتا رہے، فکر مند رہے، اور اس انداز میں فکر مند رہے جس انداز میں حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو اس انداز میں گویا ادارے کو چلانا اور اس نقش کو چلانا، اس طرز کو چلانا
जो हज़रत मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज था। खुशी की बात यह है कि उन्होंने अपने ज़माने में एक टीम की तरबियत कर दी और उनके साथ काम करते करते बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने सीख लिया और एक सेकेंड लाइन तैयार हो गई, दूसरी सब तैयार हो गई और अब उनके कांधे पर मदरसे की जिम्मेदारी है। इसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखना है, इस निज़ाम को आगे बढ़ाना है, अपने मदरसे को पुरकशिश बनाना है। इदारा पूरे बिहार और बिहार के बाहर मकबूल है, मुतबर है। इस इदारे के एतबार को कायम रखते हुए मज़ीद इसे तरक्की से हम करार करना है। ये अज़्म रहेगा, ये इरादा रहेगा, इंशाअल्लाह ताला काम आगे की तरफ बढ़ता है। हज़रत मौलाना कासिम साहब को जो असरात रहे और तमाम लोग उनको बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ आज भी याद करते हैं, उन तमाम लोगों से इत्तेबात, उनसे ताल्लुक़ कायम रखना इदारे के ज़िम्मेदारों के लिए ज़रूरी होगा ताकि ये इदारा तरक्की की मंजिलों को तय करता जाए। मौलाना ने इस वक्त यहाँ कायम किया था, ज़ाहिर है कि वो तारीख पुराने लोगों के ज़हन में है मौजूद और कितनी बेसरो सामानी के आलम में हज़रत मौलाना ने यहाँ इदारा कायम किया था। ये रेगिस्तान इलाका, चटियल इलाका हज़रत मौलाना ने अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, आहे सहरगाही से मौलाना ने इस चटियल मैदान को एक इदारे की शक्ल में तब्दील किया। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़रे को फूल जो गुलशन बनाए सहरा। हज़रत मौलाना ने इस सहरा को गुलशन बनाने का की कामयाब कोशिश की और आज ये इदारा गुलशन की शक्ल में हमारे आपके सामने। इसके पीछे कितनी कोशिशों काविश होगी, मौलाना ने कितनी मेहनत भी होगी, इसका अंदाज़ा आप सब लोगों को है। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम इस इदारे को तरक्की की तरफ ले जाएं। यही ख्याल अक़ीदत है मौलाना कासिम साहब की खिदमत में और उनके कामों की तहसीन भी यही होगी। हमको ख्याल अक़ीदत भी यही है कि इस चमन की आबियारी की जाए और ठीक से तालीम और तरबियत का मामला आगे की तरफ बढ़ता है। मुझे एक बात और अर्ज़ करनी है आपसे कि कभी कभी काम करने में दुश्वारियाँ होती हैं और दुश्वारियों का आना काम करने वाले लोगों के लिए एक चैलेंज के तौर पर आता है और अल्लाह ताला की नुसरत खैर के कामों में होती रहती है। तो नुसरत इलाही के भरोसे काम को मुस्बत फिक्र के साथ आगे की तरफ बढ़ाते चलना चाहिए और अल्लाह ताला की नुसरत से उम्मीद रखना चाहिए कि कायनात के खालिक और मालिक की नुसरत रहेगी। जो लोग इस निज़ाम को चला रहे हैं सब जमा साल हैं, उनके अंदर हिम्मत भी है, हौसला भी है और हज़रत मौलाना ने उनकी तरबियत करके कुछ तजर्बे की पुख्तगी भी उनके अंदर पैदा की। इस एतबार से वो हज़रत मौलाना के तजर्बे से उसके फ़ायदा उठा चुके हैं और जमा साल भी हैं, अज़्म व इरादा भी उनका बहुत पुख्ता है, बहुत बेहतर है और ताकत व क़ुव्वत व तवानाई भी है। तो इस एतबार से इस इदारे को आगे की तरफ लेकर के चलना आसान भी होगा। कभी कभी सलाहियत और सालियत सबके साथ साथ तजर्बे की पुख्तगी की ज़रूरत होती है। मुझे खुशी है कि हाजी बिलाल साहब ने ज़माना गुजारा है और उनके पास तजर्बात हैं और अच्छा किया उन्होंने कि अपने लिए अब इस इदारे की खिदमत करके सरमाया आखिरत जमा करने की सोचा है उन्होंने। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पूरी टीम को शफ़क़त मोहब्बत के साथ, उसूल और ज़ाब्ते के साथ लेकर के अगर आप चल रहे हैं और यकीनन आप वक्त दे रहे हैं तो ये इदारा आपके तजर्बे की बुनियाद पर, असातिज़ा की सलाहियतों की बुनियाद पर और आपकी शफ़क़त की बुनियाद पर यकीनन ये इदारा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इन इदारों में अखलाक़ी सतह बुलंद रख करके असातिज़ा से काम लिया जा सकता है, इसलिए कि उनको तनख्वाहें तो जो मिलती ही हैं, लेकिन टीम के अंदर मुखलिसाना की इत्तिबाअ, एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ी किसी भी इदारे के लिए ज़रूरी होती है। तो छोटे लोग बड़े लोगों की बात मानने का मिजाज रखें और बड़े लोग छोटे लोगों पर शफ़क़त का मिजाज रखें, तो इस तरह इदारा तरक्की की तरफ बढ़ता जाएगा और
तरक्की करता जाएगा। मेरी नेक दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप सब लोगों के साथ हैं। गुजरो जो बाप से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें लगे हैं फूल वो डाली हरी रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।